ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 5 6 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6 दिन में 1.5 लाख लग गया। 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੈਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ। फट जाएगी टांग। हाँ उस गवाही को लाओ, वो जो गवाही थी, क्योंकि ये गवाही से आपको बहुत सारी बातें समझ आएगी। आप कब आए थे आप हमारे पास? 2021 में 2021 में। क्या हुआ था तुम्हें? ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 5। कौन सी टांग की? ये लेफ्ट वाली टांग की। हाँ 5 नाड़ें ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी। और फिर क्या हुआ? डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट क्या चल रहा था? 6 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 6 दिन में 1.5 लाख लग गया। ਹਾਂਜੀ अच्छा। और ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ तो ਮੇਰੀ। कोई फोटो है वो जब, क्योंकि ले हैंड भी है हमारे पास, लेकिन इन लोगों को याद नहीं था कि सुबह उनको भी तारीख याद नहीं कब आई थी यहाँ, जिससे वो निकाल सके हम। वो पूरा सीन था हमारे पास, लेकिन जब ये गवाही डालेंगे हम कल आपके लिए स्पेशल है। ये बहुत लोगों को शेयर करना, खुद भी दोबारा देखना, सबको शेयर करना, उसमें हम वो सीन लगा देंगे। इधर देखो ध्यान से। अच्छा, फिर और क्या हुआ था? ਜਦ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੁੱਜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਰਿਹਾ। डॉक्टरों को? ਹਾਂਜੀ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਕੈਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੱਸ ਪੈ ਗਈ ਆ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਵਾ। फट जाएगी टांग। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ कोई ਗਈ ਸੀ। ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ इतनी ਸਕਦਾ। मोटी होगी थी। ਇੰਨੀ 30 ਕਿਲੋ ਦੀ 30 ਲੱਤ किलो ਹੋ ਗਈ की ਸੀ। टांग ਹਾਂਜੀ। होगी। हाँ सोचो, इस पूरा वेट 60-65 किलो होता है, किसी का 70 होता है, तो 30 किलो की एक टांग होगी। ਹਾਂਜੀ। सोच कर देखो। अच्छा, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਵਾਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਫੜਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਫੜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। चंडीगढ़ ले जाओ। ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਤਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹੂੰਗੀ, मेरा बड़ा क्या औखा होगा, सी- मैं मर हाँ जी। जाऊंगी। हाँ मेरी डॉक्टर ने भी क्या सी ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ। ऐसे बोला टांग काटेंगे। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਸਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ। हमारी समझ से बाहर है। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਡੇ 5 लाख इकट्ठा करके चंडीगढ़ PGI चले जाओ। ਹਾਂ ਹਾਂ। फिर ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕੌਣ ਆ, ਹਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਏ। ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। वही 5 जो 1.5 लाख लगा। हाँ हाँ अच्छा, 5-6 वो दिन। बात बता रही है ना। हाँ जी हाँ जी। फिर सब जवाब होगा। चंडीगढ़ PGI गए? नहीं नहीं मैं वादी हॉस्पिटल वादी नहीं, वो तो आपने बता दिया ना कि 1.5 लाख लगा, लेकिन फिर भी राम नहीं आया। हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ। हाँ PGI चंडीगढ़ में गए? नहीं नहीं उधर उधर कितने नहीं फिर आप गए। सुसमाचार मिला, फिर इधर आ गए। हाँ हाँ मेरी सिस्टर ने इधर प्रेयर करवाई ना। हाँ, ते लेकिन फिर ट्रीटमेंट चला। हाँ हाँ लेकिन कुछ आराम नहीं आया। कुछ नहीं। फिर यहाँ तुम्हें लाया गया। हाँ जी। वो लैंड हमारे पास तो नहीं है अभी, क्योंकि इस गवाही को देने का मीनिंग बड़ा है, जो आपके लिए बड़ा स्पेशल है, खास है। ठीक है,
वो टांग की फोटो दिखाओ जो इतनी मोटी होगी थी, स्वेल होगी थी। ये देखो, ये पूरी तरह से स्वेल होगी थी, ठीक है। वो कह रहे थे फट जाएगी टांग डॉक्टर। लेकिन उसके बाद जब ये आई ना, सुनो, पहले दिन ही तुझे परमेश्वर ने छू लिया था। हाँ जी। पहले दिन तू जो उठकर चल नहीं पाती थी, तुम चलने लगी। हाँ। यहाँ दौड़ी। हाँ जी। महिमा हुई परमेश्वर की। हाँ जी। जैसे हम गवाहियां देते हैं यहाँ, हाँ। इंस्टेंट लोगों को जब हीलिंग मिलती है। अच्छा, उसके बाद फिर तू बनी रही। हाँ। फिर थोड़े टाइम के बाद तू पूरी तरह ओके होगी। फिर तू बड़ी खुश होगी। हाँ। फिर तू कितने महीने रेगुलर संगति में बनी रही? मेरा मतलब इवेंजलिस्ट का कार्ड भी बना था, फिर मैंने रूहों को जोड़ना शुरू कर दिया। हाँ। मैं अपनी नहीं, आप कितने महीने रेगुलर बनी रही परमेश्वर के साथ? मैं 5-6 महीने। 5-6 महीने हाँ। लगातार बनी रही। हाँ जी, सुनो हाँ इधर जी। देखो, फिर इसने इतना बड़ा काम देखा, इसकी जिंदगी बच गई, इसका प्यार हो गया प्रभु से, इसका मन लग गया परमेश्वर से, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ है ना जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये रूहों को बचाने की सेवा करने लगी, मतलब लोगों को जोड़ने लगी, लोगों को लाने लगी। लेकिन कई लोग आए, लेकिन एक बहन को इसने लाई जिसको कैंसर हो गया था ब्रेस्ट का, ठीक है। जब ब्रेस्ट का कैंसर हो गया तो वो डॉक्टरों से शायद जवाब था उसको, डॉक्टरों से हाँ जी, जवाब ही था। हाँ जी। जब ये उसको लेकर आई यहाँ, तो वो बड़ी बुरे हालात थे उसके। फिर उसकी ले हैंड प्रार्थना हुई मुझसे? नहीं हुई पापा जी। ले हैंड प्रार्थना नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं, उस दिन तो आप बोल रहे थे हुई। नहीं, मीटिंग हुई थी आपसे। मीटिंग हुई? हाँ हाँ। वो मीटिंग हुई, प्रार्थना हुई, एक ही बात होती है। हाँ हाँ। बात नहीं समझते आप। हाँ। ले हैंड तो कुछ सेकंड का होता है, मीटिंग तो मिनटों की होती है ना, जिससे बात सुनना, समझाना, गाइड करना, प्रेयर करना। तो मतलब ये है कि ये काम जो है मीटिंग हो गई उससे, सोचो। लेकिन वो बहन का मन इतना अजीब था, वो हमेशा इसको कहती थी ये बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, इसको नेगेटिव करती थी। आप समझते हो? तो उसका मन तो खराब था, इसका भी साथ साथ खराब कर रही थी। जैसे इसका मन खराब कर रही थी, आप अपना तो उसका खराब ही था, और उसका मन सही बना नहीं, जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। लेकिन जब उसकी डेथ होगी तो इसका मन खराब हो गया और इसने आना छोड़ दिया, ठीक है। जब आना छोड़ दिया तो एक दिन पवित्र आत्मा की मर्जी क्या थी, चेक करो कौन कौन लोग नहीं आ रहे आजकल, शैतान ने किनका मन खराब कर दिया, आगे पीछे कर दिया होगा। तो बहुत सारी नंबर इनको मिले हमारी मिनिस्ट्री से। हमारी टीम ने मेहनत करना शुरू किया, लोगों पर कॉलें करनी शुरू की। कई लोग तो बदतमीजी से बात की, लेकिन कुछ लोगों ने 150 फैमिलीज जिनके काम हुए थे, भला हुआ था, जैसे इसका, ऐसे छोटी सी बात से शैतान ने मन खराब कर दिया और आना बंद कर दिया। और जब आना बंद कर दिया तो इसको भी कॉल गई, ये भी, इसका तो दुष्ट ने बुद्धि बंद कर दी। अगर कॉल ना जाती तो शायद आती ना। और जानते शैतान ने क्या कर दिया, ये सीन देखते हैं वो वाला। जब ये दोबारा आई, उस दिन मैं लोगों से मीटिंग कर रहा था दोबारा, इधर देख लो सारे जने, किन्नियां नाड़ा ब्लॉक ही तेरिया पहला 5-6, ते लत्त किड्डी मोटी हो गई, एडी मोटी 30 किलो दी होगी। ਜਦੋਂ आई चलदी नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਇਆ, सब ठीक हो गई। किड्डी ਵੱਡੀ गवाही, पूरी लत्त कटनी पैनी है ना। सुन लो पहला, ठीक हो गई। छोटी जी गल तो शैतान ने मन खराब किया, पिछे गई। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਣੇ ਜੇ। ਆਪੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਹੀਂ ਤੇ ਹੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? सारी पूरी नीली हुई पई, गिल्टियां बनियां। हाँ जी, पूरी भरी पई। तो की फायदा है पिछे होंदा? कोई नहीं। हील हुई या नहीं हुई पूरी? हुई। तो फिर पीछे जाके मन खराब करके की मिला? फिर वही हालात।
ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਕਰਤੀ ਨਾੜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਣ ਜਾਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਚਲੋ ਫੜੋ ਦੀ ਟੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਵੇਲੋ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰਹੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। लेकिन शैतान आउन दे रहा है ना, नहीं ना आउन देना। देख लो मर रही परेशान पर आउन नहीं दे रहा, इदा वो बुद्धि बंद करता जी। कहनी इन्नी दुख रही है टंग, थल्ले फोड़ो थोड़ा। शट, चल गंदी आत्मा, शट दे दी टंग, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। इस गंदी आत्मा नु, दुष्ट आत्मा नु फिर तो जड़ा अटैक किया दे जीवन ते आउट, शट 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 शट, निकले दी टंग चो, गंदी आत्मा आउट, शट आउट, फ्री। ये वो सीन है जिस दिन मैं वो सब लोगों पर जो पीछे शैतान ने कर दिए लोगों को, तो वो कुछ फैमिलीज आई, कोई 100-150 लोग आए थे, मैं उन पर फिर से वर्क कर रहा था। अब मुझे बताओ, हमने आपसे फीस लेनी है, पैसा लेना डॉक्टरों की तरह, 1.5 लाख लग गया। हमने तो कोई पैसा नहीं ना लिया तुमसे, नहीं। क्या कोई डिमांड की 50,000 या लाख दे दो हमें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों शरीर में जाना है? क्यों अपना जीवन खराब करना है? आप बुद्धिमान बनकर, अपनी बुद्धि लगाकर सोचो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस दिन मैं इसको फिर से लोगों को गाइड कर रहा था बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में, लेकिन अच्छा मन कर रहा था। फिर से उस दिन जब लैंड हुई इसकी दोबारा, जो फिर से इसकी एक नाड़ क्या हो गई थी, पूरी नीली हो गई थी, नीली। हाँ जी, पूरी नीली हो गई सी ते ओदे सारी दे विच ना फिर गिल्टियां बन गईयां सीगीयां। क्या कैसे चेक किया गिल्टियां? मेरे इदां जदों मैं हाथ अच्छा, हाथ लगाने से ऐसे गिल्टियां गिल्टियां बन गई थी, नाड़ी फूल गई थी, ऐसे गिल्टियां बन गई थी। फिर से चलने फिरने में दिक्कत आंदी सीगी। हुण रात को नींद तो ठीक आ जाती है, पर लेकिन चलने फिरने में फिर हो सकता आगे जाकर बढ़ जाता रोग। ਜਦੋਂ मैं चलदी फिरदी हां मेरी लत्त बिल्कुल भारी हो जाती है, भारी हो जाती थी, लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। लेकिन उस दिन ये दोबारा आई, फिर से लोगों को गाइड किया, फिर से इसकी मैंने ले एंड प्रार्थना की, तो अभी ये गवाही दे रही है। ये बुधवार आई थी, आज संडे है, चेक कर लो, फिर से वो बीमारी चलेगी। अभी पूरी तरह टांग ठीक होगी, नीली नाड़ी सही होगी। हाँ जी, बिल्कुल वो नीली नाड़ी जो थी, हाँ बिल्कुल ठीक है, हैं? ठीक है। करके दिखाओ टांग को, क्या कर रहे थे? सकती? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये हिलना भी मुश्किल होगी थी, है? हाँ, बांक कर भी दिखाओ। हाँ, ये देखो, शरीर थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य ने क्या किया है, काम किया है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। अब शैतान किसी से भी मन खराब कर सकता है। इसको क्या करना चाहिए था कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे मौत से निकाला है, मेरी टांग कटनी बची है। वो बहन का मन खराब था, नहीं उसने मन बनाया तो ठीक है, वो नहीं बची तो मैं उसके पीछे क्यों लगूं, मैं अपना मन क्यों खराब करूं? ऐसे मन चाहिए था। जब भी आप लोगों को लाओ अच्छा काम करने के लिए, बाइबल में लिखा कुछ बर्तन नरादर के हैं, कुछ बर्तन आदर के हैं। हम नहीं जानते कौन नरादर। ये वो सीन है जिस दिन मैं वो सब लोगों पर जो पीछे शैतान ने कर दिए लोगों को, तो वो कुछ फैमिलीज आई, कोई 100-150 लोग आए थे, मैं उन पर फिर से वर्क कर रहा था। अब मुझे बताओ, हमने आपसे फीस लेनी है, पैसा लेना डॉक्टरों की तरह, 1.5 लाख लग गया। हमने तो कोई पैसा नहीं ना लिया तुमसे, नहीं। क्या कोई डिमांड की 50,000 या लाख दे दो हमें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों शरीर में जाना है? क्यों अपना जीवन खराब करना है? आप बुद्धिमान बनकर, अपनी बुद्धि लगाकर सोचो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उस दिन मैं इसको फिर से लोगों को गाइड कर रहा था बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में,
लेकिन अच्छा मन कर रहा था। फिर से उस दिन जब लैंड हुई इसकी दोबारा, जो फिर से इसकी एक नाड़ क्या हो गई थी, पूरी नीली हो गई थी, नीली। हाँ जी, पूरी नीली हो गई सी ते ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੇਰ ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। क्या ਪੂਰੀ। कैसे चेक किया गिल्टियां? ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ अच्छा, हाथ लगाने से ऐसे गिल्टियां गिल्टियां बन गई थी, नाड़ी फूल गई थी, ऐसे गिल्टियां बन गई थी। हाँ। फिर से चलने फिरने में ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ। रात को नींद, नींद तो ठीक आ जाती है पर लेकिन चलने फिरने में फिर हो सकता है आगे जाकर बढ़ जाता रोग, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भारी हो जाती थी, हाँ। लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। हाँ जी। लेकिन उस दिन ये दोबारा आई, फिर से लोगों को गाइड किया, फिर से इसकी मैंने ले एंड प्रार्थना की, तो अभी ये गवाही दे रही है। ये बुधवार आई थी, आज संडे है, चेक कर लो, फिर से वो बीमारी चलेगी। अभी पूरी तरह टांग ठीक होगी, नीली नाड़ी सही होगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। वो नीली नाड़ी जो थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। है ठीक है। करके दिखाओ टांग को, क्या कर रहे थे? सकती? हाँ हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है अब। ये हिलना भी मुश्किल होगी थी, है? बाजू मैं हाँ, बांक कर भी दिखाओ। हाँ, ये देखो, शरीर थोड़ा भारी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ्य ने क्या किया है, काम किया है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। अब शैतान किसी से भी मन खराब कर सकता है। इसको क्या करना चाहिए था कि खुदा ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे मौत से निकाला है, मेरी टांग कटनी बची है। वो बहन का मन खराब था, नहीं उसने मन बनाया तो ठीक है, वो नहीं बची तो मैं उसके पीछे क्यों लगूं, मैं अपना मन क्यों खराब करूं? ऐसे मन चाहिए था। जब भी आप लोगों को लाओ अच्छा काम करने के लिए, बाइबल में लिखा कुछ बर्तन नरादर के हैं, कुछ बर्तन आदर के हैं। हम नहीं जानते कौन नरादर के हैं, कौन आदर के हैं। हमने सबको गुड न्यूज देनी है, पता नहीं कौन बच जाए। हमें अपनी मेहनत में परमेश्वर के पवित्र काम में लगे रहना है सच्चे दिल से। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे जो तुम लाओगे सारे हील हो जाएंगे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग मन फुराएंगे, चाहे सारे फुराएंगे, परमेश्वर उनके जीवनों को बदलेगा। कुछ लोग मन नहीं फिराते, कुछ लोग देखना आते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है अजीब सा कि अपना मन तो हमेशा खराब रखते हैं, दूसरों का भी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, अपनी लाइफ को खराब मत करो। वो तो अच्छा हुआ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझ आया, हमने उन पर कॉल करना शुरू किया। आप जानते हो कितनी कॉल की थी आपने? नहीं, आपने कितनी कॉल की कि 150 फैमिली ने आना था। 700 कॉल से 150 फैमिली मानी थी आने के लिए। सोच कर देख लो। और ये 700 में से हो सकता है 200-250 ऐसे लोग हों जिनके काम नहीं हुए। ये तो बड़ी दूर की बात है, ये तो छोटी सी बात थी। देखो, चंगाई पाकर मन खराब कर रहे हो तो लोगों के सामने कैसे खड़े रहोगे? बोलो, उस खुदा के लिए, उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए कैसे खड़े रहोगे? कैसे खड़े रहोगे? छोटी छोटी बातों से मन खराब करोगे। तुम्हें बढ़ना होगा। तुम चमत्कारों को देखना चाहते हो, तुम सामर्थ को देखना चाहते हो, तो फिर मन फुराओ, पूरे मन से उसके साथ चलो। फिर देखना कैंसर तक भी धुआं बन के उड़ जाएगी। और मैं जो बोल रहा हूं, मैं कहानी नहीं बोल रहा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा 100% है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, आपने बने रहना है, फिर से सुसमाचार देना है, फिर से जीना है। ठीक है पापा। पूरी तरह से। अगर तू सच्चे मन से सच्ची बेटी बनेगी। तेरा पति क्या करता है? कुछ नहीं, नशे करता है वो भी। पैसे कहां से आते हैं उसके पास? अपने लोग का काम कर ले, इधर ही आए हुए ने हुन। नशा करता है? हाँ। कौन सा? दारू। दारू पीता है? हाँ। तो घर का गुजारा कैसे चलता है? मैं अपना सिलाई करदी हां ते बाकी मेरे सोहरा साहब दिंदे ਮੈਨੂੰ। वो गवर्नमेंट जॉब करते? नहीं नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਗੈरह करवाਉਂਦੇ। अच्छा, ये काम करते, उससे जो पैसा आता है वो हेल्प करते हैं, या तू सिलाई करती है उससे घर चलता है? हाँ हाँ। पति कुछ ज्यादा नहीं देते? कुछ नहीं देते हैं पर इतना नहीं, मतलब शराब पी लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन अगर तू बेटी बनकर जी,
तो वो तुम्हें राजाओं की तरह आगे बढ़ा सकता है। यस आमेन आमेन आमेन। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है। तुम्हें बढ़ना होगा अब, ठीक है? आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।